السلام علیکم اور آداب ناظرین. آج اس نئے ولاگ کے ساتھ میں آپ کے درمیان پھر سے موجود ہوں، اور اب اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ اہم اور جو ہے موضوع بحث بنا ہوا جو ٹاپک ہے، جو ایشو ہے، وہ ہے ایران کا کیا گیا حملہ جو اسرائیل پر ہوا ہے. اور ہر طرف یہی جو ہے ابھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ حملہ نہیں بلکہ ایک نئی جنگ کی ابتدا ہے. ظاہری بات ہے، حملہ کرنے والے بھی کچھ سوچ سمجھ کر حملہ کرتے ہیں، اور جس پر حملہ ہوا ہے وہ بھی جو ہے اس حملے کو اتنا آسانی سے نہیں لیتے. پھر یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ ایک ملک دوسرا ملک پر جو ہے حملہ کیا ہے، اور اس بات کے اندیشے تھے کہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی باتیں، یا پھر ایک اور ایک جنگ دنیا پر جو ہے وارد ہو سکتی ہے، مسلط ہو سکتی ہے. کیونکہ ایران کا یہ کہنا ہے اس حملے کے بعد کہ اس نے اپنے دو اہم جو ہے ساتھیوں کی ہلاکت کا بدلہ لیا ہے، جس میں ایک تو حسن نصر اللہ تھے اور دوسرے جو ہے اسماعیل ہانیہ تھے. چونکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ ان لوگوں کی موت کا جو ہے اثر ضرور ہوگا، اور کہیں سے کوئی بدلے کی بات یہ یا ریٹیلیشن پھر سے آئے گی. اور جب جو ہے ظاہری بات ہے اسرائیل نے ان لوگوں کو مارا تھا، اسے بھی اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ ایران کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اس طرح کی باتیں جو ہے آئیں گی، اور حملے کا جو ہے جواب ضرور دیا جائے گا. چنانچہ وہ لوگ بھی تیار ہوں گے اس بات پر کہ جو بھی ہوگا اسے جو ہے جنگ کے ذریعے یا پھر جو ہے کسی اور طریقے سے اس کو جو ہے روکا جائے اور ختم کیا جائے. اور ظاہری بات ہے جب حملہ ہوتا ہے تو حملے کا جواب بھی حملے کی صورت میں ہوتا ہے. اس طرح سے ایک جو ہے سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت جو ہے جنگ صادر ہو سکتی ہے، وارد ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ 3 دن گزر چکے ہیں اس حملے پر. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ 150 سے 200 کے درمیان یا ہو سکتا ہے اس سے کچھ زیادہ جو ہے میزائل جو ایران کی جانب سے داغے گئے ہیں اسرائیل پر. اس میں اسرائیل کے سرکاری میڈیا نے یہ نہیں کہا ہے کہ کتنی جو ہے ہلاکتیں ہوئی ہیں کہیں یا نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ بتایا گیا کہ اس کا اثر جتنا جو ہے ایران نے کہا ہے اتنا نہیں ہوا ہے، بلکہ بہت کم ہوا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ حملہ ہوا ہے اور یہ حملے کا جواب دیا جائے گا. اسرائیل کے جو ہے خبر رساں اداروں نے اور اسرائیل کے مختلف رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے اس حملے کا جواب دیا جائے گا، اور جواب بڑا سخت ہوگا. اور ظاہری بات ہے سخت حملے کا جو ہے جواب بھی سخت ہی ہوگا. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک ممکنہ جنگ بولنا چاہیے اسے، یہ جو ممکنہ جنگ ہے یہ 2 ممالک میں اس طریقے سے لڑے جائے گی کہ ایک ملک کا حملہ دوسرے ملک پر جو ہے ایک ملک یا 2 ملک سے جو ہے کے اوپر سے اس کی فضائی پٹی سے گزر کر جو ہے کرنا ہے. ان کو یہ آپس میں جو ہے براہ راست یا ڈائریکٹ جو ہے نہیں لڑ سکتے، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جارڈن اور عراق ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جارڈن اور عراق جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں جو ہے اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا، یا کم از کم اپنی جو ہے حفاظت خود اختیاری جس کو کہا جاتا ہے اس کے تحت جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ تو جو ہے قدم اٹھانا پڑے گا کہ یہ جو ان کے ہمسائے لڑ رہے ہیں، ایک ہمسایہ ادھر کی طرف ہے، دوسرا ہمسایہ ادھر کی طرف ہے، اور بیچ میں 2 ممالک ہیں عراق اور جارڈن. اب یہ جنگ اس طریقے سے ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 ممالک کے درمیان ہونے والی جنگ یا 2 ممالک کے درمیان ہونے والی لڑائی ہو سکتا ہے یہ خطے میں بھی پھیل جائے اور آہستہ آہستہ سارے مڈل ایسٹ کو اپنے اندر لے لے. یہ 2 ممالک کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، بلکہ قریب جو ہے ان کے اطراف جتنے ممالک ہیں 7-8 اور شاید اس پہ بھی جو ہے اثر انداز ہو، اور وہ لوگ بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے خوشی سے یا بادل ناخواستہ مجبوری کے عالم میں اس جنگ میں شامل ہو جائیں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ایران کے اطراف، ایران کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی تعداد 7 یا 8 ہے، جس میں پاکستان، افغانستان، عراق، کویت، UAE، ترکی، ترکمانستان اور گلف آف عمان. یہ اتنے جو ہے ممالک اس کے اطراف ہیں. اور ظاہری بات ہے قریب جو ہے اس سے کم یا زیادہ ممالک اسرائیل کے جو ہے اطراف بھی ہیں. اب یہ جو اسرائیل کا حملہ ہوا ہے آپ دیکھیے اس بات میں کہ اسرائیل کی جانب سے ہمیشہ یا اسرائیل کے ساتھ ہو کر کئی ایک یورپین ممالک بھی جو ہے اپنا حصہ ادا کیے ہیں یا دوستی کا حق ادا کیے ہیں، اور امریکہ بھی ہمیشہ جو ہے اسرائیل کی بھرپور مدد کرتا رہا ہے اپنے وعدوں کے مطابق، اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس بات کو کہ وہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ اسرائیل کی ہمیشہ مدد کرے. اس طریقے سے یہ جو ہے تقریباً ایک 15-20 ممالک کا جو ہے بلاک ہو جاتا ہے، یا ہو سکتا اس سے کچھ کم زیادہ ہو.
اور دوسری طرف ایران کا یہ معاملہ ہے کہ وہاں پر اتنی زیادہ تعداد میں اس کے کوئی جو ہے دوست نہیں ہیں یا اسٹریٹجک پارٹنرز نہیں ہیں جو اس کی مدد کر سکیں، بلکہ ایران کو جو ہے مدد کے طور پر صرف آپ کے ایک سیریا ہے اور دوسرا عراق ہے، تیسرا یمن کا کچھ حصہ ہے، اور چند کے انڈیپینڈنٹ جو ہے گروپس ہیں جیسے حزب اللہ اور جو ہے یمن کے ہوتیز ہیں، یہ لوگ جو ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن ایران کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے، چاہے وہ کچھ کانفلکٹ میں رہا ہو یا پھر جو ہے کھلم کھلا جنگ جو ہے اس نے لڑی ہے، جس طریقے سے اس کی جنگ ہوئی تھی عراق کے ساتھ جو صدام حسین کے دور میں، جو تقریباً جو ہے قریب 10 سال جو ہے چلی ہے وہ جنگ، جس میں عراق کے اور ایران کے دونوں طرف کے ملا کر جو ہے لاکھوں لوگوں کی موت ہوئی ہے اور لاکھوں فوجی اس میں ختم ہوئے ہیں اور بلینس آف ڈالرز جو ہے اس میں خرچ ہوئے ہیں یا بلینس آف ڈالرز کا جو ہے نقصان ہوا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی جو ہے ایران تنہا لڑا ہے اس جنگ کو، اور آج بھی ایران جو ہے تنہا کھڑا ہے۔ وہ لوگ جو ہے اس بات میں یقین نہیں رکھتے کہ جنگ جو ہے کسی کے جو ہے بھروسے پر لڑی جائے یا کسی کو ساتھ لے کر لڑی جائے۔ چنانچہ آپ ایران کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیے، آج نہیں بلکہ تقریباً جو ہے 500 سال، 600 سال، 700، 800 سال، 1000 سال، جب سے آپ ایران کو دیکھیے کہ وہ ہمیشہ جو ہے اس طرح کے معاملات میں نہ صرف رہا ہے بلکہ اس نے جنگیں بھی لڑی ہیں۔ جیت ہار جنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن ایران جو ہے ختم نہیں ہوا، نہ اس نے کسی ملک کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور آج وہ بھی جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایران کی اکانومی ویک ہے، ایران کی کرنسی ویک ہے، ایران کے جو ہے حالات خراب ہیں، لیکن ایران پھر بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اور چاہے آپ اس کی جو ہے آپ مہارت کو کس انداز میں لے سکتے ہیں آپ لیجئے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ایران اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی ایران جو ہے اتنا زیادہ خود مکتفی نہیں ہے، ایران کے کوئی جو ہے ایکسپورٹس نہیں ہے، ایران کے پاس کوئی صنعتیں نہیں ہیں، ایران کے پاس کوئی پروڈکشن خاص طور کی نہیں ہے، لیکن قدرتی طور پر جو ہے ایران بہت زیادہ مالا مال ہے۔ ایران کے پاس دنیا کا بہترین جو ہے زعفران ایران میں پیدا ہوتا ہے، دنیا کے بہترین ڈرائی فروٹس ایران میں پیدا ہوتے ہیں، دنیا کے بہترین قالین ایران کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے جو ہے بہترین ریزلرز ایران میں تیار ہوتے ہیں، اور ایران کی فٹ بال ٹیم کو ایشیا کی جو ہے ایک بہترین ٹیم میں ہمیشہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس بات کو ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کا جو سب سے بڑا سہارا ہے اس کی اکانومی کے لیے اور اس کنٹری کے لیے وہ ہے اس کی آئل پروڈکشن اور ایکسپورٹ۔ آئل پروڈکشن اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی وہ کر سکتا ہے یا اس کی جتنی کیپیسٹی ہے، کیونکہ اس پر جو ہے سینکشنز ہیں بہت زیادہ، جس کی وجہ سے جو ہے اس کا آئل ایکسپورٹ بھی متاثر ہوا ہے اور آئل پروڈکشن بھی متاثر ہوا ہے۔ کچھ سالوں پہلے کا جو فگر ہے اس کے ایکسپورٹس کا وہ اراؤنڈ 15 بلین US ڈالرز ہے ایکسپورٹس کا، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ چائنا کو جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے اپنا آئل ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ بیسس پہ، کیونکہ دوسرے کنٹریز جو ہے سینکشنز کی وجہ سے اس کا آئل خرید نہیں سکتے ہیں یا خریدنے سے معذور و مجبور ہیں۔ لیکن اسی بھی جو ہے سب سے اہم بات جو ایران کے لیے رہی ہے یا اٹھی ہے وہ بات یہ ہے کہ اس نے ان سینکشنز کے دوران نہ صرف اپنی اکانومی کو سدھارنے، سنبھالنے اور مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس نے میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی میں جو ہے کافی ترقی کر لی ہے۔ اس کے میزائلز جو اب سپر سونک سے نکل کر جو ہے ہائپر سونک کی گئے ہیں، یا پھر ہائپر سونک میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے، اور اس کے میزائل جو ہے اس لحاظ سے ایک طاقتور سیکٹر کا جو ہے حصہ رکھتے ہیں۔ پلس جو ہے ڈرون ٹیکنالوجی، آپ کو یاد ہے کہ چند سال پہلے جو ہے ایک امریکہ کا ایک ڈرون جو ہے ایران کے ایریا میں گر گیا تھا، جسے ایران نے حاصل کر لیا تھا، اور امریکہ نے ڈیپینڈ بھی کی تھی کہ اس کا ڈرون اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد شاید وہ ڈرون واپس نہیں ہوا، اور اسی کے ذریعے سے یا پھر اس کے جو ہے پیرالل اس وقت جو ہے ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی پہ جو ہے کام ہو رہا تھا، لہٰذا انہوں نے ڈرون میں ٹیکنالوجی میں بھی اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ وہ جو ہے اب دنیا کے بہترین شاید ڈرونز بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت جب وہ ڈرون امریکن ڈرون گرا تھا ایران میں، اس وقت جو ہے امریکہ نے یہ کہا تھا کہ اس کے پاس جو ہے اس سے 5 یا 6 جو ہے جنریشن آگے کی ٹیکنالوجی موجود ہے، اور اسے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے جانے، یہ تو نہیں کہا تھا انہوں نے کہ ٹیکنالوجی کے جانے پر، بلکہ یہ کہا تھا کہ
अगर वो ईरान ड्रोन वापस कर दे तो उसके लिए ठीक है, वरना हमारे पास उससे जो है 5th 6th जनरेशन आगे तक की ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है माना जाता है। अब मसला यह है कि ईरान के कभी भी अपने जो है किसी भी नेबरिंग कंट्री से कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, चाहे वो सऊदी अरब हो जाओ, चाहे वो कुवैत हो जाओ, चाहे वो ओमान हो जाओ, चाहे वो ख़तर हो जाओ, चाहे वो कोई और कंट्री हो जाओ अतराफ का, उनके जो है कभी भी उतने अच्छे ताल्लुकात उनसे नहीं रहे हैं। और अरब ब्लॉक हमेशा एक अलग रहा है जिसे GCC के नाम से जाना जाता है, और ईरान हमेशा अपनी जो है एक आइडेंटिटी को लेकर आगे बढ़ा है। अब मसला ये है कि ये जो जंग हुई है या फिर जो है इब्तिदा हुई है, ये मामलात इसीलिए कि भी जो है समझे जा रहे थे, एक्सपेक्टेड जो है माने जा रहे थे कि जिस अंदाज में जो है गुज़िश्ता चंद सालों से मिडल ईस्ट के जो हालात हैं और गुज़िश्ता चंद एक डिकेड से जो है ईरान को इस बात की कोशिश की जा रही थी कि स्ट्रेटेजिकली जो है इसको इतना नाकारा कर दिया जाए कि वो किसी बात के काबिल नहीं रहे। चुनांचे ईरान को जब इस बात का उनको एहसास हुआ कि जो है शायद हमारे साथ इस तरीके के मामलात हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने तौर पे जो है जो भी जो है उनको हिकमत में अमली समझ में आई, उन्होंने इख्तियार की और उस पर आगे बढ़ गए। चुनांचे आज ये देखा जाता है कि ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर जो है चीन का नाम आता है एक, और एक कुछ किस्म की दोस्ती उसकी जो है रशिया से भी है। इसके अलावा शायद ही उनकी जो है कुछ ज़्यादा दोस्तियां या ज़्यादा ख़ुरबतें रही हों। और मसला यह है कि जिस वक्त आयतुल्लाह खुमैनी इस दुनिया से गए और ईरान को जिस तरीके से उन्होंने तैयार किया, जैसी सोच उन्होंने ईरान को दी और जैसी जो है तरबियत उन्होंने ईरान के लोगों की, ईरान के रहनुमाओं की, ईरान के लीडरों की आज भी जो है उसी सोच पर ईरान आगे बढ़ रहा है। और जो है आज भी खुमैनी के असरात जो है ईरान पर वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा सकते हैं। शाह रज़ा पहलवी जब जो है ईरान को छोड़कर गए, जब जो है उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसके बाद जो है जो हुकूमत आई थी वो आपके जो है आयतुल्लाह खुमैनी की थी। और खुमैनी के पास जो है एक आइडियोलॉजी थी उनकी जो उन्होंने मुसल्लत की, और वो आइडियोलॉजी जो है सिर्फ यही थी कि जो है इनफरादी तौर पर ईरान को किस तरीके से ताकतवर किया जाए और आने वाले ख़तरात से निमटने के लिए उसको किस तरीके से जो है अहल किया जाए। चुनांचे वही स्ट्रेटजी आज भी जो है चलती हुई आ रही है। हम ये देखते हैं कि कई एक दुनिया में वाक़यात रोनुमा हुए, इसके बावजूद जो है ईरान की जो ताकत वो अपनी जगह पर रही। अब आप अंदाज़ा इस बात से आप लगाइए कि खुद उसके हमसाए यानी उसकी नेबरिंग कंट्री इराक से ईरान की जंग जो है तकरीबन 10 साल चली है, और 10 साल में जैसा कि मैंने अभी आपके सामने कुछ देर पहले इसी व्लॉग में ये बताया था कि जो है लाखों लोग ख़त्म हुए और बिलियंस ऑफ डॉलर की मईशत जो है तबाह हुई, बर्बाद हुई, लेकिन फिर भी जो है ईरान ने किसी तरीके से अपने आप को संभाल लिया। और जो है ना सिर्फ संभाला बोल के इस जो है हद तक वो ताकतवर हुआ कि आज भी रीजनली तौर पे रीजन में जो है उसका नाम भी है, रोब भी है, दबदबा भी है और उसकी अहमियत भी है। अब देखिए ये बात कि ईरान ने जो हमला किया है अपने मिसाइल्स के ज़रिए, और उसके बाद ये कहा है कि उसने जो है 2 लीडरों की हलाकत का अपने बदला लिया है और बदले के तौर पर जो है ये हमला किया गया है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि ये हमला सिर्फ जो है फौजी तनसीबात पर किया गया है और सिविल जो है पॉपुलेशन है उस पे जो है किसी किस्म का हमला नहीं किया गया है। वो सही बात है या गलत बात है इसका तो जो है मैं आपको जो है इसके बारे में तो नहीं बता सकता, वो तो वही लोग जानते हैं जो हमले के जो जाया वकू है यानी जिस एरिया पर जो है हमले हुए हैं उसके ताल्लुक से जो है जानकर और वहाँ के हालात को देखकर कुछ आपको जो है ये बताया जा सकता है। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि ईरान का जो हमला है ये सिर्फ हमला नहीं है, बोल के जहनी तौर पर शायद ईरान इस बात के लिए तैयार है कि अगर जंग होती है तो हम लड़ेंगे। ये मसला जो है सबसे बड़ा, और जाहिर बात है कि जंग जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि 2 लोग आपस में बैठ के जो है लड़ ले रहे हैं या जो है एक दूसरे से बहस कर ले रहे हैं, बल्कि एक मुल्क की जंग दूसरे मुल्क से जब होती है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसके असरात क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आज के हालात में जंग हो रही है, आज जबकि जो है हर मुल्क के पास चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो कम से कम जो है इतने हथियार, इस तरीके के हथियार हैं जो है शायद एक
बॉम्ब या एक मिसाइल या कोई और इस किस्म की चीज़ें, अब तो जो है रोबोट भी शायद जंग लड़ने के जो है अहल हो गए हैं, उन्हें भी जो है इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए जो है अटैक हो रहे हैं और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है जंगों में इस्तेमाल करने के काबिल हो गई है और जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करके जो है एक दूसरे को नुस्त नाबूद करने के जो है मंसूबे बनाए जा रहे हैं, या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो हो सकता है कि इसके इस्तेमाल से भी जो है दरेग ना किया जाए और उसको भी जो है बिला शक व शुबा इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर ऐसी सूरत में जंग होती है तो उन ममालिक का क्या होगा जो ईरान के अतराफ भी हैं और इसराइल के अतराफ भी हैं, जो चाहते हुए भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं, ना चाहते हुए मजबूरी में भी उनको इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा और जो है अहम सवाल है। असल मसला यह है कि जैसा कि मैंने आपको यह कहा कि यूरोप के चंद ममालिक या बेशतर ममालिक और अमेरिका ख़ास तौर से, ये लोग जो है इसराइल का हमेशा से साथ दिए हैं हर मामले में, और आज भी जो है वो स्ट्रेटेजिकली जो है कमिट किए हुए हैं इस बात को कि ईरान इसराइल के साथ जिसके भी मामूलात होंगे उनको जो है फेस ऑफ करने के लिए ये ज़रूर जो है इसराइल के साथ खड़े होंगे। वरना ऐसी सूरत हाल जो है ईरान के साथ तो कोई नज़र नहीं आती, ईरान के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ईरान तैयार है इस बात के लिए कि वो इसराइल पर हमला करे, ना सिर्फ तैयार है बल्कि हमला करे, बल्कि उसने हमला कर भी दिया है। अब असल मसला ये आएगा कि इसराइल का जो जवाब आया वो एक जो है एक दो दिन के लिए रहेगा, ये जंग जो है आगे जाएगी और फैलती, जिस तरीके से हमेशा हुआ है कि आग लगती एक जगह है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फैलते हुए अपने अतराफ के तमाम एरियाओं को भी जो है तबाह व बर्बाद कर देती है। ये तो एक छोटी सी आग का मामला है। ये अब जो हमारे सामने मसला खड़ा हुआ है, एक वो जंग है जो दो ममालिक के दरमियान लड़ी जा रही है। यह सबसे बड़ा मसला है। आप किसी भी जंग को जो है दुनिया की उठाकर देख लीजिए, हर जंग का मामला ये होता है, इब्तिदा उसकी तो छोटे पैमाने पर होती है लेकिन इंतहा होते होते वो जो है ना जाने कहाँ की कहाँ चली जाती है। क्या ये जंग भी उसी तरीके से आगे बढ़ेगी या कुछ और तरीके से आगे बढ़ेगी, दुनिया का कोई आदमी जो है इसके बारे में नहीं बोल सकता सिवाय जो है इसराइल के और ईरान के, क्योंकि वो दोनों जो है एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हुए हैं। अब इसराइल के पास क्या ताकत है और ईरान के पास क्या ताकत है? जाहिरी बात है इसराइल की ताकत सिर्फ इसराइल की ताकत नहीं है, बल्कि वो अलाइज में से अपने जब भी चाहे जिससे भी मदद लेना चाहे ले सकता है और उसके अलाइज उसको जो है मदद देने के लिए तैयार हैं। और ईरान का मामला यह है कि उसके पास, चूँकि इसराइल के मुकाबले में ईरान का जो रगबा है मुल्क का वो बहुत बड़ा है और ईरान जो है अपने आप को महफूज रखने के लिए या फिर एक मुमकिन जंग के लिए जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए शायद वो ज़माने से करता हुआ आया है। और जो है अब देखना यह है कि वो किस तरीके के आइंदा हिकमत अमली अख्तियार करता है। लेकिन असल मसला ये है कि क्या ये दोनों जो है आपस में लड़ते रहेंगे और जो है दूसरे ममालिक को भी ये जंग में जो है शामिल होना पड़ेगा बादल नाख्वास्ता, या फिर यूएन काउंसिल या जो है यूएन काउंसिल में वीटो रखने वाले ममालिक कोई ऐसी हिकमत अमली अख्तियार करेंगे कि ये जंग जो है रुक जाए और ये जो है इफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए ये मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन मसला यह है कि ये ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती, ऐसे कोई मुमकिनात दूर दूर तक नज़र नहीं आते, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जिसका नुकसान हुआ है वो जब तक अपने नुकसान का बदला ना ले ले इस जंग से पीछे नहीं होगा। और जिसने नुकसान किया है वो शायद इस डिटर्मिनेशन के साथ, इस बात के यकीन के साथ और इत्मीनान के साथ कि हाँ हम ये हमला कर रहे हैं और आगे जो भी नतीजा इसका आएगा हम इसको जो है फेस ऑफ करने के लिए, संभालने के लिए, इसका सामना करने के लिए तैयार हैं, तो फिर कोई और क्या कर सकता है इस सिलसिले में। लेकिन मसला यह है कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब जो है सद्दाम हुसैन के दौर में ये जो है अमेरिका की जानिब से और यूरोपियन ममालिक की जानिब से, और कौन कौन उसमें शामिल थे मेरे को नहीं मालूम, ये कहा गया था कि जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक़ के पास हैं, यानी हयातियाती और केमिकल हथियार जो है इराक़ के पास हैं और वो जो है इंसानियत के लिए तबाहकुन हो सकते हैं, इसलिए उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। ये कहकर जो है
इराक पर हमला किया गया था और लोग ये समझ रहे थे कि इतने ममालिक का जो ब्लॉक है वो जब अकेला इराक पे जो है अकेले इराक पर हमला कर रहा है तो ये जंग शायद 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलेगी और फिर ईरान जो है इराक हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और जो है उसका शीराज़ा बिखर जाएगा। लेकिन दुनिया ने देखा है कि वो जंग जो है 3-4 दिन में ख़त्म नहीं हुई, बल्कि तकरीबन जो है 1 महीने से 1.5 महीने लगा उस जंग को समेटते समेटते, और जब कहीं जाकर जो है वो जंग ख़त्म हुई और ईरान को जो है मुकम्मल इराक को मुकम्मल तौर पर जो है मफलूज किया गया। लेकिन मफलूज होने के बावजूद इराक आज भी मौजूद है और इराक की जो है अपनी हुकूमत उस मुल्क में जारी है। इराक खुद अपने मामलात देख लेता है। ये इस तरीके की बातें हैं। वो इराक जो ईरान से लड़कर जो है 10 साल तक तबाह हो चुका था और क़रीब अपनी जो है सारी इकोनॉमी को गंवा बैठा था, अपनी मईशत को तबाह कर बैठा था, वो जो है जब इतने दिन तक लड़ सकता है किसी के साथ, तो ये ईरान जो है जो आज ताकतवर भी है, स्टेबल भी है अपनी जगह पर, उनकी और जो है दूसरों की जंग न जाने कितने दिन चलेगी और कैसे कैसे जो है तबाहकारियाँ दुनिया को दिखाएगी। ये मसला सबसे बड़ा है। अब आज के दौर में किसी मुल्क का एक दूसरे मुल्क से जंग लड़ना कोई आसान बात नहीं है। वो दौर में जो है हथियार जिस तरीके के बनाए जाते थे उससे करीब 10 गुना ज़्यादा जो है ताकतवर हथियार आज बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके के बम बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से मिसाइल बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो है ऐसे तैयारे जो बमबारी करते हैं वो जो है बनाए जा रहे हैं। सुपरसोनिक तक जो है बात पहुंच गई है। सुपरसोनिक से भी शायद ज़्यादा आज कुछ और पता नहीं जो है इस तरीके के लेवल के हथियार बनाए जा रहे हैं। वारशिप्स आज के दौर में ऐसे हैं जैसे एक वारशिप अगर जो है अच्छे कंट्री की, जैसा अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, इनकी रशिया के बारे में तो नहीं बोल सकता मैं कि उसके पास कितने वारशिप हैं, लेकिन अमेरिका के वारशिप जो है पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि मशहूर हैं। और करीब ऐसा मामला है एक वारशिप का कि एक वारशिप सिर्फ जो है किसी एक छोटे से मुल्क के पास जितनी सारी फौजी ताकत है उससे भी ज़्यादा पावरफुल जो है ये वारशिप होती है। और ये जो है गल्फ़ के जो समंदर हैं उसमें जो है ये वारशिप्स अमेरिका के मौजूद हैं। न जाने कल के दिन जो है कौन कौन इस जंग में जो है कूद पड़ेगा और हिस्सा लेगा और अपना जो है हिस्सा अदा करने की कोशिश करेगा, अभी हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन ये बात जो है हमारे जहन में ज़रूर मौजूद है कि ये मामूली बात जो है नहीं है जो 3 दिन पहले हुई है। ये जिस अंदाज में जो है लेबनान में हालात तब्दील हुए हैं, जिस अंदाज में इधर जो है यमन के हालात तब्दील हुए हैं। देखिए मिडल ईस्ट के कितने कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त जो है तबाही और बर्बादी का नमूना बने हुए हैं। यमन मुकम्मल तौर पर अपनी इकोनॉमी खो चुका है, इराक मुकम्मल तौर पर अपनी इकोनॉमी खो चुका है, सीरिया मुकम्मल तौर पर अपनी इकोनॉमी खो चुका है। वो लोग भी जो है किसी तरीके से जो है, फिर असल मसला यह है कि फिर जंग उन पर भी जो है मुसल्लत हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, बीइंग ए नेबर कंट्री, और उनको भी जो है इसमें शामिल होना है। अब तो देखते हैं कि किस अंदाज में किस की क्या स्ट्रेटजी होती है और कौन किस तरीके से जो है अपने आप को सेव करने के लिए या फिर अपने जो है मामलात को सुधारने के लिए किस तरीके से इस जंग में कूद पड़ता है, अभी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो है आने वाला दिन कैसे हालात लाएगा, कैसे हौलनाक और जो है तकलीफ दे हालात होंगे, इस बात का अंदाज़ा सबको है। और कल के दिन जो है इसराइल की जानिब से किस तरीके से हमला किया जाएगा या इसराइल अपने अलाइज के साथ किस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो जो है देखना है। ईरान ने कई दफ़ा कोशिश की कि जो है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के उसके हालात जो है सुधर जाएं, और नेबरिंग कंट्रीज़ ने भी कोशिश की कि किसी तरीके से ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है या हमारे जो मामलात हैं इस तरीके जो है किसी तरीके से उनको जो है एक स्ट्रीम लाइन में ला लिया जाए और सुधार लिया जाए। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने, एक दूसरे के इंटरेस्ट जो है इस तरीके से टकराए, एक दूसरे के जो है ये बात नहीं हो सकी, और आज जो है सब अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और ये मामला जो है इसराइल और ईरान के दरमियान आ गया है। ये एक बात हमेशा रही है, इसराइल ने ईरान की दोस्ती को गवारा नहीं किया और ईरान ने इसराइल की दोस्ती को गवारा नहीं किया। ये बात एक मुसल्लमा है और इसके बारे में दो राय नहीं है। लेकिन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट में आज जो ममालिक जो है आहिस्ता आहिस्ता इस जंग के दायरे में आ सकते हैं या घेरे में आ सकते हैं, उनका मसला ये है कि तो ना ये निकल सकते हैं महफूज रहकर, ना दाखिल रह सकते हैं मसरूफ रहकर। अब ये देखना है कि किस तरीके से हालात बनते हैं। चुनाचे अगले व्लॉग में शायद 1, 2, 3 दिन में या 4 दिन में फिर से इस
میں جنگ تو نہیں کہوں گا، میں کہنا بھی نہیں چاہتا دل سے کہ جو ہے جنگ ہو، کسی طریقے سے معاملات سدھر جائیں، سنبھل جائیں، کیونکہ جنگ میں جو ہے ہو سکتا ہے کوئی ملک جیت جائے، کوئی ملک ہار جائے، لیکن ہمیشہ یہ بات مسلم ہے اور طے ہے کہ انسانیت بھی ہارتی ہے، انسان کا بھی نقصان ہوتا ہے اس میں، اور کوئی انسان اور انسانیت کا جذبہ رکھنے والا جو اپنے دل میں ہے نہیں چاہے گا کہ جنگ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں امن و امان کر دے اور محبت کر دے، محبت کو عام کر دے۔ چنانچہ اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کے لیے بھی دعا کیجیے۔